Okay, so when you write, an essay, for instance, whenever you write an essay in writing task 2 of your IELTS, uh, you always come across, number of mistakes. I have seen, students committing a lot of mistakes in an essay. So this small session is going to be not only educative and informative for you people, but it will also give you, fundamentals of rules of subject verb agreement, which probably, you might not know. Let me tell you students that in any sentence, there should be a subject verb agreement. Now if you don't have a subject verb agreement, then there is a big possibility that you might commit mistakes in at least one or two sentences in every paragraph. So this session will help you educate or get education about subject verb agreement, and will also prevent you from making small silly mistakes in the future. So I hope you're all ready to go. Yeah, I have got students coming. So let me get started. Now, first of all, what is subject verb agreement? Now, before I go ahead with this subject verb agreement, let me tell you a small thing. For example, whenever you are writing a sentence, as you all know, that for a sentence to be called a complete sentence, you need to be having a subject and a verb. For example, you cannot have a sentence, usually unless and until it's an imperative sentence. For example, when you say go, go is also a complete sentence. But other than that, most of the sentences, in fact, majority of the sentences requires to have a subject and a verb. For example, Ramesh is going to the USA. So over here you can see Ramesh is the subject and is going is the verb. But even if I say Ramesh goes, then that also is a complete sentence. So as I have just told you before, that in order for a sentence to be called a complete sentence, you need two things: subject and verb. These are two important things. Yeah, I'll just record this sentence. Yeah, this is getting recorded. I mean, somebody was telling me, but this is getting recorded. So don't worry. In case if you want to refer this in the future, you can very well refer this. Don't worry. Okay. Now, first and the foremost thing, I want everybody to listen. I want everybody to understand. This is very, very important, that I have seen students even coming from English medium background, making mistakes in subject verb agreement. Now, subject verb agreement समझने के लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने पास नोटबुक और पेंसिल साथ में रखें. I want you people to have a notebook and pencil and start jotting the points that I'm teaching you right now. These are very important things. And let me tell you, you won't be able to get this type of things in any book. This is through our experience that we have gathered, and I'm putting this in front of you. Now आपको सब पहले सबसे important चीज, subject verb agreement में सबसे ज्यादा गलती होती है in present tense. So for example, what is a present tense? For example, if I say present tense is used for indicating habits, routines and facts. For example, I play cricket in the morning every day, or I go to the beach every Saturday. Or it is also used to indicate facts. For example, water boils at 100 degrees Celsius, or sun rises in the east, sun sets in the west. ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. एक चीज का याद रखो कि प्रेजेंट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यू नीड टू ऐड एस इनटू योर वर्ब. आपको एस लगाना पड़ेगा. ये जो सेशन होगा ये इस पे ही फोकस नहीं करेगा, मैं आगे जाने वाला हूं. सो अगर आप लोगों को पता है तो आप उसको साइड में रख दीजिए. आई एम गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज समझना जरूरी है कि सर पहले हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है. तो याद रहे कि आई एंड वी आर कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट पर्सन. जैसे कि फर्स्ट करो एक रूम में हो आप और एक रूम में किसी से बात कर रहे हो, so if you're talking to Ramesh, then if you're talking to Ramesh, then you become the first person. Because you're talking to Ramesh, he becomes the second person. And if you're talking about something else, for example, you're talking about, for example, the remaining portion of the class, then they become the third person. तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर किसको फर्स्ट पर्सन माना जाए, किसको सेकंड पर्सन माना जाए, किसको थर्ड पर्सन माना जाए, तो याद रहे फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे. मतलब आई और यू के अलावा सारी चीजों को आप थर्ड पर्सन में कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, द टेबल इज वेरी गुड, तो द टेबल, बिकॉज इट इज नॉट आई, बिकॉज इट इज नॉट यू, द टेबल हुआ आपका थर्ड पर्सन. इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गो हेड, इज इट क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीबडी? Because this becomes the crux of subject verb agreement. Is it clear everybody? I want you people to give me the answers in the chat box so that I can go further.
and is it fine if I go by this speed, because I'll have to increase my speed. मुझे आपकी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी बिकॉज इसमें बहुत सारा मटेरियल है. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सेकंड पर्सन, और ये हुआ आपका थर्ड पर्सन. नाउ बात ये आती है कि सर अब हमें क्या ध्यान रखना है. whenever you write a sentence students, एक चीज का याद रखो कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको आपके वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा. तो कैसे लगाना पड़ेगा? तो अगर आपका वर्ब थिंग है, नाउ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कैन यू सी द चेंज्ड स्लाइड? आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम रीडिंग? थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब दिख रहा है आपको? एवरीबॉडी कैन यू सी द चेंज स्लाइड? ओके फाइन. सो नियम ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई रिपीट, इफ योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आपको वर्ब में अगर सिंग है, जैसे कि यहाँ पे इन दिस केस इफ इट इज सिंग, then the verb is going to be you are going to add s to that. It is going to be converted into sings. give है तो gives हो जाएगा, require है तो requires. इसको हम कहेंगे एक, ये जो है वो रूल है. अगर आपका कोई भी सीधा सा वर्ब है, इसके पीछे आपको s लगाना है. लेकिन अगर आपका वर्ब ch, s, sh, x या z से खत्म होता है, जैसे कि इस केस में वॉच जो है होता है खत्म ch से, या तो फिर मिस, रश, मिक्स, बज, इसके पीछे आपको es लगाना पड़ेगा. वॉच का हो जाएगा वॉशिश, वॉचिस, मिस का हो जाएगा मिसिस, रश का हो जाएगा रसिस. अगर आपका वर्ब y से खत्म होता है, जैसे कि इन दिस केस ट्राई है, तो आपको पीछे लगाना पड़ेगा y को निकाल दीजिए और पीछे लगाना पड़ेगा आपको ies. फॉर एग्जाम्पल फ्राई है तो इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्राइज. अगर क्राई है तो इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू क्राइज. तो एक चीज का याद रखो कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको वर्ब के पीछे आपके सामने जो स्लाइड है उसके नियम अनुसार आपको पीछे एस लगाना पड़ेगा. इज दिस थिंग क्लियर और नॉट एवरीबडी? इज दिस थिंग क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको उसके पीछे एस लगाना पड़ेगा. दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्स्ट पर्सन. आई रिपीट, दिस रूल, ये एस लगाने वाला जो चीज है वो इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्स्ट पर्सन, टू सेकंड पर्सन एंड टू थर्ड पर्सन प्लूरल. इसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. ये रूल सिर्फ एप्लीकेबल है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए. सो लेट अस हैव अ स्मॉल test, and you tell me exactly what is going to be the answer and then we'll go further. Tell me 1 to 10 में बताइए मुझे आंसर क्या आने वाला है. आपको क्या करना पड़ेगा? जहां पे s लगाना है वहां पे s लगाए, जहां पे s नहीं लगाना है वहां पे आप s ना लगाए. ओके, सो टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. शांति से टेक टाइम, 5 मिनट, 2-3 मिनट ले लीजिए और शांति से खत्म कर दीजिए. आदित्य, आपको आईएनजी नहीं लगाना है, आप जो लगा रहे हो इज बार्किंग नहीं लगाना है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा रहे हो. आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है. आपको यही वर्ब लेना है और इसके पीछे एस लगता है या नहीं लगता वो आपको मुझे बताना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. And I'm going to teach very important things, after this, so don't run away. Okay, you can write the answer in the chat box. I can see the answers. I want everybody to participate. बहुत मजा आएगा. Everybody should participate in this. Regardless of the background you are coming, sir, इसमें क्या देखना है? इसमें गलतियां होगी, 110% गलतियां होगी. Okay, so you let me know when you are done. I'll explain you the things. मैं अब अगर आपका खत्म हो जाता है तो मुझे बताना, मैं उसको पूरा आपको समझाऊंगा कैसे करना है. Okay, is it done? Tell me when it is done. आप अपने नोटबुक में आंसर लिख दो and then I'll check it out. क्या सबका आंसर 1 to 10 का? क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन ऐसे ऐसे में इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, is it done? Very good. That's great. I can see that people are saying that खत्म हो गया. Okay, very good. Akshay has given me all the answers. I can see all the answers coming. आप जो मुझे आंसर्स देते हो वो सिर्फ मुझे और मुझे दिखते हैं. It is not visible to anybody else. ठीक है. So let us check out the answers, students. पहले इसका आंसर्स चेक करते हैं. ये इसका आंसर्स है, ये इसके आंसर्स है. आप नीचे देख सकते हो पहले का आंसर जो है, इसमें पहले ये समझना पड़ेगा आंसर क्या है. तो यू कैन सी ओवर हियर
आंसर ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है विंटर, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप देख सकते हो पीछे आंसर आएगा कम्स। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही पीछे एस लगेगा। अ डॉग इज बेसिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर, डॉग्स नहीं है, सिर्फ डॉग है, तो पीछे बार्क्स आएगा। उसके बाद यू के पीछे लुक्स नहीं आएगा, क्योंकि यू जो है वो है सेकंड पर्सन, और ये जो नियम है पीछे एस लगाने का इज ओनली एप्लीकेबल टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। बाद में फोर्थ वन, एवरीवन, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एवरीवन, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, और anybody, anyone, anything, ये अगर सब्जेक्ट पार्ट में आते हैं तो वो सिंगुलर ही माने जाएंगे। आई रिपीट, एवरीवन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो अगर एवरीवन है, सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है, तो जाहिर है आंसर इज गोइंग टू बी मेक्स, ये मेक का मेक्स हो जाएगा। अली इज बेसिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर, आई और यू के अलावा सारे चीजें थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाती है, तो इसका आंसर आएगा वर्क्स, जो आप पीछे फिफ्थ में देख सकते हो। देन कम्स टीम्स, जुडी, जुडी इज अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो पीछे आएगा स्पीक्स। ओके, टीम्स नी जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जाहिर आंसर इज गोइंग टू बी हर्ट्स। अगर नीज होता तो आंसर वुड हैव बीन हर्ट, तो सिर्फ हर्ट होता। आठवां, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि गलतियां हो सकती है, तो मंकी जो है, अगर सिर्फ मंकी होता देन द आंसर वुड हैव बीन लाइक्स, बट क्योंकि मंकीज है दैट मींस इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हमारा नियम ये कहता है कि सिर्फ आपको एस तभी लगाना है जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्योंकि मंकीज थर्ड पर्सन प्लूरल है, सो आपको पीछे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज ओनली गोइंग टू बी लाइक। केट वापस आएगा, केट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ईट का हो जाएगा ईट्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज बेसिकली सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन, आई यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट दे, तो जाहिर है ही है, तो आंसर आ जाएगा टाइप्स। एक चीज का याद रहे, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है, सो फॉर एग्जांपल राहुल, राहुल लाइक्स बनानाज, तो आप देख सकते हो कि राहुल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन अगर इसी चीज को राहुल एंड मेहुल अगर मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये जो हो जाएगा लाइक, ये हो जाएगा वो लाइक हो जाएगा, क्योंकि राहुल और मेहुल बन जाते हैं, थर्ड पर्सन तो है दोनों, लेकिन वो थर्ड पर्सन प्लूरल बन जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और ये चीज की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल? Is it understood now, everybody, or you want me to explain it again? Understood now? थर्ड पर्सन सिंगुलर में पता चला आप लोगों को, तभी जाके मजा आएगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड विद द थर्ड पार्ट, लेट अस गो अहेड विद द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यही चीज अगर नेगेटिव हो जाती है, फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि अगर आपको पता है पॉजिटिव है तो आई टॉक, फर्स्ट पर्सन है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वही चीज नेगेटिव हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, तो आई डू नॉट टॉक, देखिए आपको पता होगा कि अगर नेगेटिव होता है तो आई डू नॉट डू लगाना पड़ता है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये शी है और वो हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो सी का आपको पता है टॉक का टॉक्स हो जाएगा, लेकिन अगर डज नॉट लगाते हो तो याद रहे कि डू का डज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टॉक का टॉक्स मत कर देना, क्योंकि आगे डज आ जाता है। सो इट इज गोइंग टू बी सी डज नॉट टॉक। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये थोड़ा सा अटपटा है और यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में नेगेटिव है, जैसे कि सी टॉक्स, तो वहां पे शी है, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। इज इट गेटिंग क्लियर? तो ऐसे केस में इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर डज नॉट लग जाता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर शी तो आगे लगा हुआ है, तो मैं टॉक्स क्यों ना करूं, क्योंकि आपने डू का डज कर दिया, क्योंकि देखो ये जो ईएस लगाने वाला है, ये डू का डज आपने ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पे देखिए डू का ऑलरेडी डज हो चुका है। सो यहाँ पे फिर यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज गोइंग टू बी ओनली सी डज नॉट टॉक। तो ये छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए, और एल्स इट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यू स्लीप, तो यू डू नॉट स्लीप, तो उसमें तो ये तो सेकंड पर्सन है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ही स्लीप्स, तो ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसका नेगेटिव होता है तो ही डज नॉट हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा। नियम आपको वही याद रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जो भी वर्ब है उसके पीछे एस लगाना है। तो डू का कैसे, डू का डीओएस डॉज नहीं लगा सकते, डीओईएस लगेगा, और क्योंकि आपने यहाँ पे डज लगा दिया है, यहाँ पे स्लीप ही लगेगा, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड स्लीप्स। कैरोल स्टडीज, कैरोल डज नॉट स्टडी, एंड वी स्टडी,
वी डू नॉट स्टडी, वी में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वी इज फर्स्ट पर्सन, आई और वी कम्स इन फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आपका यहाँ पे है दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज ये सारे जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर और नेगेटिव फॉर्म में है, तो डज हो जाएगा यहाँ पे। ले ये पॉजिटिव फॉर्म में होता तो टॉक्स होता, नेगेटिव फॉर्म है तो आपने टॉक नहीं करना है, क्योंकि आई मीन टॉक्स नहीं करना है, एस नहीं लगाना है, बिकॉज आगे डज हो जाता है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड नाउ? इज इट क्लियर एवरीबडी? फर्स्ट ऑफ ऑल you can take a screenshot of this and then we can go further, everybody. Yeah students, okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। So let us go further now. ये छोटी सी चीज है। अब आपका मैं टेस्ट लेता हूँ। I am going to take a small test and tell me exactly what is going to be the answer. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे टेस्ट ले रहा हूं मैं। मुझे बताइए आंसर क्या आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का। चलिए so you need to select any one of these two options. I want everybody to participate. Let me tell you, there are lots of new things you will learn over here, students. So I want everybody to participate, please. Shavani, Pankaj, all of you, I want everybody to participate. Ayush, Aditya is very active. I am very happy for that. I want everybody to participate. मैं ही सिर्फ पैसिव एक्टिव बात रहूं, मैं चाहूंगा आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। प्लीज डू दैट। वेरी गुड सोहम। ओके, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे इसको। तो पहले का जो आंसर है, इफ यू डन देन वी कैन गो अहेड। वेरी गुड। रुतवा इज गिविंग आंसर्स, रीचा वेरी गुड, धवल, आयुष, ओके डन। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, सो आई एम नॉट गोइंग वी नीड टू गो अ बिट फास्टर। चलिए पहले का जो आंसर है ये होगा ईज आएगा। नाउ एक यहाँ पे हर एक आंसर के साथ मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। फर्स्ट द फॉरमोस्ट थिंग, नियम ये कहता है कि अगर आपके सब्जेक्ट के पीछे अलोंग विथ, accompanied by और as well as और ऑल टुगेदर विथ आता है, तो सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस सब्जेक्ट इज जॉन, इट इज फॉलोड बाय अलोंग विथ। इन दिस केस ये पूरा सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट इज ओनली जॉन, सो दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो पीछे लगेगा इज। एक चीज का यहाँ पे याद रहे कि जॉन एंड 20 फ्रेंड्स होता, द आंसर वुड हैव बीन आर। इज इट क्लियर एवरीबडी? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड? अगर सब्जेक्ट के पीछे अलोंग विथ, accompanied by, as well as या तो फिर ऑल टुगेदर विथ आता है, तो सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले यहाँ पे ध्यान रखें, ये चीज कहीं पे नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी देयरफॉर इज। अगेन आई रिपीट, जॉन एंड एंड हिज 20 फ्रेंड्स होता, या तो जॉन एंड 20 फ्रेंड्स होता तो आर होता। सो आंसर ऑफ पहले, इसी के पहले का आंसर उसी लिए इज है। सेकंड का आंसर वो है ब्रिंग्स। क्यों ब्रिंग्स है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द पिक्चर है। पिक्चर जो है ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन के आगे वाला जो है वही सब्जेक्ट माना जाता है। तो आपका सब्जेक्ट द पिक्चर ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स नहीं है, आपका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ द पिक्चर है। तो पिक्चर जो है पहले, इज इट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? एवरीबडी, I want answers from you. Is the picture first person, second person or third person? Can you tell me, is it first person, second person or third person? It is third person. Is it singular or plural? Is it singular or plural? Singular. Very good. I can see third person singular है। तो हमारा नियम ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा। इसी के लिए इसका आंसर जो है इज गोइंग टू बी ब्रिंग्स।
द क्वालिटी ऑफ दिस रिकॉर्डिंग्स, तो इसका जो है सब्जेक्ट जो है द क्वालिटी है, तो जाहिर है क्वालिटी इज सिंगुलर, सो आंसर इज गोइंग टू बी इज। चौथे का आंसर इफ द ड्यूटीज, सब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो है इफ द ड्यूटीज, जाहिर है दिस इज गोइंग टू बी प्लूरल, ऑफ के पहले वाला ही सब्जेक्ट माना जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लूरल, तो आंसर इज गोइंग टू बी आरंट, ये आरंट हो जाएगा। और फाइनली subject in the fifth sentence, the subject is the effects, this is plural, तो जाहिर है आंसर पीछे लगेगा have, so this is going to be have, तो पीछे वाला जो फिफ्थ वाला आंसर जो है is going to be have। Understood now everybody? Understood? Have you understood the issues now? Okay, so let us go ahead with the next one, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे, इसके आंसर बताइए। शांति से कीजिए, आई डोंट वांट यू टू पीपल टू रश, देयर इज नो नीड टू वरी। I want everybody to give me the answer of fifth one very correctly. सबसे important है fifth वाला, मुझे fifth वाला आंसर सबका correct चाहिए। When you are done, let me know. I'll check out the answers. Done, everybody? Okay, I am getting answers from all of you. Very good, excellent. You people are very participative. Okay, so let us take the first one. पहले का आंसर लेते हैं। I can see the answers coming from all quarters. So let us take the first one. पहले का आंसर है द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन प्लेस ऑफ कैश। तो आप देख सकते हो पहला जो है सब्जेक्ट है द यूज, यहाँ पे ध्यान रखना है, आप ऐसा शायद प्रेरित हो जाए कि सर क्रेडिट कार्ड्स है तो जाहिर आंसर इज गोइंग टू बी हैव, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, वापस कह रहा हूँ कि अगर आपका प्रेपोजिशन है ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, उसके पहले वाला ही सब्जेक्ट माना जाएगा। सब्जेक्ट इज देयरफॉर द यूज, इट इज नॉट द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप ये कार्ड्स ले लोगे सब्जेक्ट तो आंसर हैव दे दोगे और इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग आंसर। ये याद रहे कि ये बहुत बहुत बच्चों को ये गलतियां होती है, बहुत बहुत बच्चों को ये गलतियां होती है। सो क्योंकि आपका सब्जेक्ट इन दिस केस इज द यूज, देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी हैज। अगर मुझे हैव लगाना था, अगर मुझे हैव लगाना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर मुझे हैव लगाना है, आई एम डिटरमाइंड टू यूटिलाइज हैव, so what change I need to do in the sentence? Very good, Richa has given me very good answer. आंसर हो जाएगा आपका the uses हो जाएगा। वेरी गुड। अगर आपको have लगाना है तो आपको सब्जेक्ट में ऐड करना पड़ेगा uses, isn't it? ओके, वेरी गुड। दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट, आपको ये समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट जो है इट इज प्लूरल। याद रहे काफी नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल्स ही होते हैं, सो यू कैन नॉट से एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स ही होगा, सो आंसर इज गोइंग टू बी आर। ओके, यहाँ पे एक चीज का याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था एज वेल एज, एकम्पनीड बाय, तो अगर आप ये सब्जेक्ट के पीछे आता है तो उसकी सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी लिविंग एक्सपेंसेस है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? लिविंग एक्सपेंसेस, वो प्लूरल है, एक्सपेंस नहीं एक्सपेंसेस है, राइट आंसर इज गोइंग टू बी आर। ये याद रखना है, अगर एक्सपेंस अकेला होता देन ओनली द आंसर वुड हैव बीन इज। फिर चौथा, मिस्टर जोन्स, जो अभी गलतियां हुई थी आपसे वही, मिस्टर जोन्स accompanied by several members of the committee has proposed some changes of the rules। याद रखना है कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट के पीछे ये चीज लगती है accompanied by एज वेल एज, ऐसी चीज लगती है, और ये जोन्स जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर है, मतलब ये लगता है एस है लेकिन जोन्स नाम ही है, तो पीछे लगेगा हैज। इज इट गेटिंग क्लियर? इसके पीछे हैज लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये देखना चाहूंगा, फिफ्थ में मुझे कोई समझाएगा आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन गोइंग टू बी, एवरीबॉडी? ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट ओवर हियर इन फिफ्थ वन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन फिफ्थ वन? नहीं नहीं, पहले मुझे सब्जेक्ट बताओ क्या है, सब्जेक्ट बताओ क्या है? द लेवल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली लेवल्स। तो ऐसे केस में जो सब्जेक्ट आपका है लेवल्स, इज इट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? मुझे कष्ट करेंगे बताने का, लेवल्स है
वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? एवरीबडी, इट इज थर्ड पर्सन. वेरी गुड. इज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल? वेरी गुड. अक्षय इज सेइंग इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल. ये जो नियम एस लगाने वाला जो था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे था या थर्ड पर्सन प्लूरल के पीछे था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे था. वेरी गुड. और ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो जाहिर है द आंसर इज ओनली गोइंग टू बी वेरी. इज इट गेटिंग? क्योंकि जो आपको एस लगाना था वो आपको लगाना था सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे. तो अगर यहाँ पे लेवल होता, ये समझिए स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू पीपल नॉट टू, आई मीन डोंट वरी अबाउट गेटिंग राइट और रॉन्ग आंसर्स, पहले समझने की कोशिश कीजिए. अगर ये लेवल ही अकेला होता तो व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? अगर इसे सिर्फ लेवल होता तो व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? एवरीबॉडी, what would have been the answer if it would have been only level? तो आंसर होता वेरीज. वेरी गुड. क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता, लेकिन क्योंकि ये लेवल्स है, क्योंकि लेवल्स है, वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है. यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग, नाउ वर्ब वही का वही रहेगा. आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी वेरी. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट हम अगले वक्त करेंगे. विल बी डूइंग दैट पार्ट नेक्स्ट टाइम. I hope you enjoyed this session of subject verb agreement. I believe that you must have learned a lot of new things today. Understood? Have you understood what I'm trying to say? Okay. So I'll be taking next session. There is a lot more to explain in subject verb agreement. I'll be taking a next session probably next time. So let us go ahead with the listening part that we just started last time. हम listening करते हैं. Get ready with the listening thing. New share करूंगा मैं, और हम listening जो हमने last time रखा था उसको हम बाकी चालू करते हैं. So can you see a new share? Can you see a new share now, everybody? Very good. So I want you people पहले अपने notebook में start कर दीजिए. ये बहुत important है. Let me. Okay. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. Okay. So just go through this. This is a multiple choice question. This is a multiple choice question. और आपको इसमें ये सबसे difficult type of question of IELTS listening है. आपको क्या करना पड़ेगा? See students, it is very important for you to understand that multiple choice questions क्यों difficult रहता है. बच्चे बोलते हैं सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं आ रहे, हम लोग वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. The reason of multiple choice question considered to be a very difficult type of question is that you need to read lots of information. आप देख सकते हो आपको कितना सारा रीड करना पड़ता है. Unlike table, या तो फिर अनलाइक नोट कंप्लीट और फॉर एग्जांपल फॉर्म कंप्लीशन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत छोटी छोटी होती है और कीवर्ड्स बहुत कम होते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको करना पड़ेगा. सो आई वांट यू पीपल समबडी टू हेल्प मी आउट. हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट इन रीडिंग? nobody is going to go away. You will find out lot of interesting things coming. बहुत अच्छे सारे questions मैं ले रहा हूँ. So who is going to read? Everybody who is going to read? Yeah, you can write in the chat box. I can just, yeah, I can. Richa is going to help me out. Let me see if Richa is going to. Yeah. Okay. Yeah, Richa, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए. Yeah, can you read this question? Yeah, can you read this question? Yes. Why do flamingos in captivity needs to eat sorry, what is this? Why do flamingos in captivity need to eat algae? देखो आपने क्या रीड Algae. किया. ओके ओके, अभी हमने जो पढ़ा उसके बारे में जिक्र करते हैं. रीचा, व्हाट एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा? रीड नीड्स पढ़ा Yes, मुझे. needs. या अब फ्लेमिंगोज है वो क्या है? Plural. थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल? Third person plural. तो पीछे नीड के पीछे एस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं आएगा अगर उसमें. फ्लेमिंगो अकेला होता तो क्या करना पड़ता? Needs. वेरी गुड, अंडरस्टूड. मैं आपको एम्बेरेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, No आपको sir, I समझाने can के लिए. understand. Yes. Yeah, so I want everybody to now go through all the options. Whenever there is a multiple choice questions that comes in your IELTS examination, तो आपको याद रखना है कि आपको न सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से, आपको A B C B ऑप्शन रीड करने हैं. So please go through it very slowly. Richa, can you read once again? Yeah. Why do flamingos need sorry, why do flamingos in captivity need to eat algae? Very good. Option A, to ensure they remain healthy. B, to supplement their diet. C, to keep their bodies pink. ओके, नाउ बिफोर यू जंप ऑन टू द लिसनिंग पार्ट, आप लिसनिंग सुने उसके पहले आपको सबको पता है कि लिसनिंग के हर सेक्शन के पहले आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं. मैं हर बच्चों को ये कहता हूं कि अगर आप फाइंड आउट करते हो, यू जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर आपके सामने पहले से ही आ जाता है,
So what you need to do is find out where multiple choice questions are. For example, मैं नहीं चाहूंगा कि चौथे सेक्शन के multiple choice questions अभी पढ़ना चालू करें, लेकिन अगर आप पहला सेक्शन कर रहे हो and if you are finding that multiple choice questions are from 4 to 7 questions और 4 to 7 वाला जो ग्रुप है वो multiple choice questions वाला है, तो ऐसे केस में मैं चाहूंगा उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और सारी चीजें आप उसको रीड कर ले. जैसे कि मैं सिर्फ रीड नहीं करूंगा, आपको सबको पता होगा फ्लेमिंगो इज अ बर्ड. कैप्टिविटी मतलब केज, केज मतलब पिंजरा होता है, उसको हम कैप्टिविटी कहते हैं. आलगे, मुझे या शायद रीचा, कैन यू टेल मी व्हाट इज आलगे? They are like छोटे आलगे आपको कीड़े. नहीं कीड़े नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होता है आलगे होता है जिसको, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पानी में जाते हो जिससे आप लिपस जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू गेट आई मीन यू फॉल डाउन, इट्स बिकॉज इट इज वेरी स्लीपरी, तो उसको हम कहेंगे आलगे. तो फ्लेमिंगो जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ फंगस एज वेल. या इट इज अ टाइप ऑफ फंगस एज वेल. सो इन अ वे, फॉर एग्जाम्पल, तो फ्लेमिंगोज आलगे खाते हैं. वो आलगे क्यों खाते हैं, मतलब उनको क्यों खिलाया जाता है? तो कारण ए है टू एंश्योर दे रिमेन हेल्दी, बी टू सप्लीमेंट देयर डाइट, क्योंकि वो डाइट में सप्लीमेंट मिलता है उनको, या तो फिर टू कीप देयर बॉडीज पिंक. सो आई एम नाउ गोइंग टू प्ले द लिस्निंग एंड आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. चलिए. Listening, Section 3. Extract 1. Question 7. क्या फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, रीचा आपको आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है. ओके, या ठीक है. चलिए. नाउ आई वांट यू पीपल टू टेल मी वेदर द आंसर इज ए, बी और सी. So, flamingos in zoos need to eat algae, do they? Why is that? Well, for a long while, flamingos living in captivity, for example in zoos, kept losing their delicate pink colour and fading to white. Then the zookeepers realised the problem was due to the birds' diet. Weren't they getting enough food? No, that wasn't the problem. It was that in the wild, flamingos feed on a certain kind of algae containing chemicals called carotenoids, which give the birds their distinctive colour. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ ए, बी और सी? बताएंगे कौन कौन सा आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ या तो ये लिस्टिंग ऐसा था, या काफी लोग ए भी बोल रहे हैं, ए इज आल्सो गिवन एज एन आंसर. तो एक काम करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट मी रीड इट, डू इट अगेन. Listening, Section 3. Extract 1. Question 7. So, flamingos in zoos need to eat algae, do they? Why is that? Well, for a long while, flamingos living in captivity, for example in zoos, kept losing their delicate pink colour and... ओके, सो अगर आपने देखा होगा, सुना होगा ठीक से, तो जो नरेटर है, जो बॉय है, वो लड़की को ऐसा पूछ रहा है कि क्यों फ्लेमिंगोज को algae खाना पड़ रहा है. तो उसने ऐसा, लड़की ने ऐसा बोला कि जो फ्लेमिंगोज केज में रखे जाते हैं कैप्टिविटी में, उन्होंने देखा कि वो लोग अपना व्हाइट पिंक कलर जो है वो लूज करके इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाइट. तब वो ऐसा पूछता है ऐसा क्यों है. अब उसका जवाब मिल रहा है. fading to white. Then the zookeepers realised the problem was due to the birds' diet. Weren't they getting enough food? No, that wasn't the problem. It was that in the wild, flamingos feed on a certain kind of algae containing chemicals called carotenoids, which give the birds their distinctive colour. Exactly. तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं था कि जू में खाना कम मिल रहा था, ऐसा था कि बाहर जो था वो फ्लेमिंगोस algae खाते थे, जिनके कारण उनका कैरोटीनॉइड उसमें से मिलता था, जिसमें से वो पिंक कलर आता था. तो उसी के कारण जू में भी उन्होंने algae खिलवाना चालू किया. सो आंसर ऑफ 7th इज गोइंग टू बी सी. अंडरस्टूड एवरीबॉडी नाउ? इज इट क्लियर नाउ क्यों ये ऐसा है? डाइट कम मिलता था ऐसा नहीं है, उनको डाइट ऐसा मिलता है जिसमें algae नहीं था, और उसी के कारण उनको algae दिया गया. Understood? Just to make sure that flamingos have what? Pink color. Okay, आगे बढ़ते हैं. So answer of this is going to be C. ये भी difficult है. So just go through the diagram. This is a diagram, and I want you people to just go through it. Please go through the diagram properly. Okay, Rahul, not an issue. So I want you people to just go through it. आपको सिर्फ 16, 17 और 18 ही करना है. 16, 17 and 18. I want you to go through the things properly. और ऑप्शंस आपको यहाँ पे देख सकते हो on the left hand side. Can you read the options, Richa? Yes sir. So can you label, यहाँ से लिख पढ़ो आप, label the diagram below.
Okay, label the diagram below. Choose 3 answers from the box and write the correct letters A to G next to questions 16 to 18. Okay. A. Option A, metal frame. Option B, wing. C, plastic cells. D, door. E, computer. F, road map. G, camera. वेरी गुड. सो आई वांट यू पीपल, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये कैसे है. आप लोकेट कीजिए कौन सा है. देखो एरोज जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं. देखो ये लंबा सा एरो जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ये 18 कौन सा है. ये इस चीज को पॉइंट करता है. 17 ये फ्लैप को पॉइंट करता है और 16 जो है वो पीछे पॉइंट करता है. ऑलरेडी दे हैव गिवन आंसर मल्टी डायरेक्शनल व्हील्स. तो व्हील्स तो ऑलरेडी आ गया है. ऑप्शंस यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब 1 2 3 4 5 7 ऑप्शंस है और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शंस आपको निकालने, मतलब 4 ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू बी इन यूज. सो लेट अस प्ले दिस एंड लेट अस सी. Listening Section 3. Extract 2. Questions 16 to 18. I believe researchers are exploring the idea of a padded car to reduce injuries and accidents. Can you tell us something about what it will be like? Yes. Well, the car will be covered in plastic cells filled with air, moulded round a conventional metal frame. I see. So the plastic cells will allow cars to bounce off each other. Exactly. And you'd also be able to see what's just behind you on the road because there's a camera mounted on the back. Any other innovations? The doors will open upwards and out, giving the appearance of a wing when open, and the wheels will go in all directions to assist in heavy traffic. And to guide motorists away from traffic jams and help them find a parking spot, the car will be fitted with a computer near the steering wheel. Where the driver can see it, of course. Yes, there's also a hook to allow novel parking techniques. Oh, it sounds amazing. I'm giving you 15 to 20 seconds. You need to tell me what is the answer. So, आपको मेटल फ्रेम नहीं लिखना है. अगर आपका मेटल फ्रेम है तो ए लिखो. ए इज गोइंग टू बी द आंसर. अगर आपका आंसर वो है तो. आई कैन सी लॉट ऑफ रॉन्ग आंसर्स कमिंग स्टूडेंट्स. काफी रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं. एक बार वापस देखो कौन सा है. नहीं, काफी लोगों के गलत आंसर्स आ रहे हैं. Okay, so let us do one thing. Let us try to first of all listen to this once again. पहले इसको वापस पढ़ते हैं, listen करते हैं. Yeah, Richa, what is your answer? C for 16, plastic cells. Yeah. B, wing for 17, and computer for 18. Wing है वो. Wing जैसा appearance है. So it basically is a appearance that gives an appearance of a wing, but it is not a wing. ये wing नहीं है क्योंकि ये उड़ता नहीं है. लेकिन वो छोड़ो, ये appearance देता है. So 17 is not wing. Okay, you got any other guesses? D, door. Okay, fine. And then the 18th one? 18th one is computer. E. So you don't need to write computer, you need to write E. Yes. Yeah. So let us listen to this once again, students. I can see a lot of answers coming. So let us listen to this once again. Listening Section 3. Extract 2. Questions 16 to 18. I believe researchers are exploring the idea of a padded car to reduce injuries and accidents. Can you tell us something about what it will be like? Yes. Well, the car will be covered in plastic cells filled with air, moulded round a conventional metal frame. So 16 is going to be C, plastic cells. So answer of 16 is going to be C. उन्होंने बताया कि पूरी कार को वो लोग मेटल फ्रेम के ऊपर प्लास्टिक सेल से उसको एम्बेड करेंगे. So answer of 16 is going to be C. और आपको ये भी पता चलना चाहिए. See, I mean there is also a small way to find out. Now you can see over here there are 2 arrows. Can you see there are 2 arrows? 2 arrow है. 2 arrow इसलिए कि एक ही चीज नहीं लगा है. I mean it is basically something which is plural. और अगर यहाँ पे देखोगे तो प्लूरल कौन सा है? A to G में प्लूरल कौन सा है? 2 चीजें हैं. 16 में 2 एरोज है और यहाँ पे A to G में प्लूरल सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सेल्स ही है.
प्लूरल ना तो मेटल फ्रेम है, विंग नहीं है, डोर, कंप्यूटर, रोड मैप और कैमरा, ये सारी चीजें से भी आपको हिंट मिलेगी। तो उसी के कारण 16 का आंसर जो होगा इज सी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। I see. So the plastic cells will allow cars to bounce off each other. Exactly. And you'd also be able to see what's just behind you on the road because there's a camera mounted on the back. Any other innovations? सो काफी लोगों ने आंसर दिया होगा 18 का जो है वो कैमरा, लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा कि आंसर्स यूजुअली कम्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ऐसे नहीं होगा कि 17 के पहले ही 18 का आंसर आ जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। और ये पीछे होता है, कैमरा इज माउंटेड एट द बैक, तो उसका तो कहीं एरो ही नहीं है, सो आंसर कैमरा तो आएगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। The doors will open upwards and out, giving the appearance of a wing. तो 17 का आंसर जो है वो डोर आएगा, वो विंग का अपीयरेंस देता है। So it is not basically a wing, it gives an appearance of a wing. So 17, the answer is going to be door. So answer of 17 is going to be D. When open, and the wheels will go in all directions to assist in heavy traffic. Wheel का already उन्होंने आंसर दे दिया, एरो दे दिया है. So wheels are not going to be the answer. So we are looking for one more answer, which is going to be 18-1. And to guide motorists away from traffic jams and help them find a parking spot, the car will be fitted with a computer near the steering wheel. Where So there will be a computer fitted near a steering wheel. तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आगे है और ये steering wheel जैसा लग रहा है, जो मेरा कर्सर है वहां पे कंप्यूटर फिट किया जाता है. So 18 is going to be computer, which is going to be E. the driver can see it, of course. Yes, there's also a hook to allow novel parking techniques. Oh, it sounds amazing. Have you understood, everybody, now? Have you understood the entire listening? I want you people to give the answer in the chat box. If you want me to explain something which you have not understood, I can do that once again. But I hope the things are clear to you. Okay? तो आगे बढ़ते हैं. Very good. चलिए. Thank you for responding. So the 16 answer is C, 17 is D, 18 is E. अब आता है note completion. Note completion is relatively easier. इसमें बहुत कम keywords होते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. एक चीज का याद रखना है कि नोट कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन में फर्क होता है. इन नोट कंप्लीशन कभी कभार ग्रामर की इस्तेमाल होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगता है लुक्स लाइक अ, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू राइट हैज टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Listening Section 4. Extract 1. Questions 5 and 6. Okay, Rutwa, could you read this? String of human DNA. Can you read? Okay, Yeah. sir. String of human DNA, approximately 3 feet long, looks like a dash, includes between 50,000 and 1 lakh genes. Complete set known as the human genome is very similar to many dash and dash. Very good. So let us see. So let us see. आपको ये पता चल जाना चाहिए कि approximately 3 feet long होगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा. और यहाँ पे ह्यूमन जीनोम जो है उसी के बाद आपका आंसर आएगा. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. ठीक है, चलिए. 6. Did you know that within the nucleus of each of your cells is a set of instructions for building you from scratch? Amazingly, if you could stretch it out, this string of acid, or DNA as it is known, would be about 3 feet long. But in fact, it's tangled up like a ball of string. Various parts of the string incorporate between 50,000 and 100,000 separate genes. A human individual's complete set of genetic material is known as the human genome. And interestingly, the human genome is not the biggest one around. Surprisingly enough, your genome has a lot in common with other animals and plants. Nonetheless, your DNA sequence is uniquely yours. You can take your time and tell me what is the answer. पूरा आंसर यहाँ पे sin IELTS listening accuracy is very very important. I want you people to be accurate in what you write. Only Kaushal has given me the right answer right now. Up to this point of time, only Kaushal has given me. Chitra has also given me right answer. Dhaval has also given me the right answer. So fifth का आंसर जो होगा
is going to be ball of string. The answer of fifth one is going to be ball of string. Exactly. और आप सारे आंसर्स कैपिटल में लिखोगे और पीछे जो सिक्स का आंसर जो है इट इज वेरी सिमिलर टू मेनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली ऐसा बोला था अदर एनिमल्स. तो अगर आपने सिर्फ एनिमल्स लिखा है तो वो चलेगा नहीं, आपको टू मेनी अदर एनिमल्स, तो आपको अदर एनिमल्स लिखना पड़ेगा एंड बाद में प्लांट्स. So that is how the answers are going to be. So answer of fifth is going to be ball of string. Ball of strings नहीं होगा, ball of string ही होगा. और sixth का आंसर होगा other animals and plants. Let me see. Listening Section 4. Extract 1. Questions 5 and 6. Did you know that within the nucleus of each of your cells is a set of instructions for building you from scratch? Amazingly, if you could stretch it out, this string of acid, or DNA as it is known, would be about 3 feet long. But in fact, it's tangled up like a ball of string. It is tangled up like a ball of string. अगर आपका क्लिक नहीं हुआ है यहाँ पे तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ये 50,000 और 1 लाख आ जाता है बोलते वक्त तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका आंसर आ गया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वाइल्ड गेस ओवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या तो फिर स्टार्ट थिंकिंग के व्हाट वुड हैव बीन द आंसर. ओके. Various parts of the string incorporate between 50,000 and 100,000 separate genes. A human individual's complete set of genetic material is known as the human genome. And interestingly, the human genome is not the biggest one around. Surprisingly enough, your genome has a lot in common with other animals and plants. Your genome has lot in common. उन्होंने पैराफ्रेज किया है, lot in common के मतलब very similar to many other animals and plants. तो आपको other animals लिखना पड़ेगा और कॉमा करके plants लिखिए. इसमें ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है लेकिन मुझे पता है इंस्ट्रक्शन में यही लिखा होगा, not more than 3 words. So what you need to do is you need to write other animals, comma, plants. That's how you're going to write answer when you transfer that answer in your answer sheet. Understood everybody now? Is it clear? Understood? Very good. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Note completion. So let us see. Yeah, Richa, can you read now? Yes. Complete the notes below. Write no more than 3 words for each answer. Lonely Planet had office located in dash but branches worldwide. Uses a variety of dash to be competitive. For example, tracking customers, allowing name to be used by a dash. Okay. So यहाँ पे आपको पहले सी रीड करते हो, आप समझने की कोशिश कीजिए कि what exactly this conversation may be all about. For example, this conversation is about a lonely planet. You must be knowing, everybody knows about Lonely Planet. For example, आप कहीं पे भी जाते हो तो Lonely Planet की बुक्स आती है जहाँ से आप for example you have gone to a remote place and you want to find out what are the things available, food कौन सी जगह पे है, heritage sites कौन सी, तो एक Lonely Planet शायद काफी लोगों को पता भी होगा. तो यहाँ पे लिखा है head office located in. So in this case, what are you expecting as an answer? What are you expecting as an answer? Head office located in. So what are you expecting as an answer? When it comes to head office, you are looking for a place. You are looking for a place. Exactly. So वो आपको पहले से ध्यान रखना जरूरी है. शायद city. Then uses a variety of dash to be competitive. कुछ इस्तेमाल ऐसा कुछ करते ताकि वो अपने आप को competitive पाए जाए. जैसे कि उन्होंने पहला तरीका दिया है tracking customers and allowing name to be used by a dash. So that's how you are guessing what possibly could be the answer. So let us check it out. Listening Section 4. Extract 2. Questions 7 to 9. Lonely Planet is one of a number of highly successful publishers of travel books. The company is based in Australia, but also has offices in a number of other countries. The travel guide business is a highly competitive market, and so to compete, they have adopted a range of marketing strategies. One thing they excel at is tracking individual customers, which in turn allows them to measure how well their marketing is working. They've also licensed the name Lonely Planet to a TV program of the same name as part of their overall strategy. Okay, so what is the answer? First of all, what is the answer?
Yes. Just a minute. Yeah, just a minute, just a minute. Okay, so answer of this is going to be वापस करते हैं इसको. Just a minute. So answer of 7th is going to be Australia. The answer of 7th is going to be Australia. Very good. Or last but not the least, answer of 8th is going to be marketing strategies. Answer of 8th is going to be marketing strategies. And 9th is going to be TV program. प्रोग्राम में आप दोनों लिख सकते हो PROGRAM, वो भी आ सकता है आंसर. And you can also write program as PROGRAMME. Anyone could be the right answer. So that is absolutely fine. So let me see if there is an issue यहाँ पे. Just a minute. Just hold on. Listening Section 4. Extract 2. Questions 7 to 9. Lonely Planet is one of a number of highly successful publishers of travel books. The company is based in Australia. So answer of 7th is going to be Australia. Nothing, I mean, I don't see any queries coming from that. Okay, then. But also has offices in a number of other countries. The travel guide business is a highly competitive market, and so to compete, they have adopted a range of marketing strategies. Adopted a range of. आप देख सकते हो यहाँ पे paraphrasing हुआ है. Adopted a range of के बदले uses a variety of. So answer of that is going to be marketing strategies. Okay, then. One thing they excel at is tracking individual customers, which in turn allows them to measure how well their marketing is working. They've also licensed the name Lonely Planet to a TV program of the same name as part of their overall strategy. The answer of 9th is going to be TV program. Understood everybody? Yes or no? So this is going to be the answer. ये आपका होगा answer. 7th is going to be Australia. 8th is going to be marketing strategies. And 9th is going to be TV program. Richa, is it clear? Because you are the voice of the other students. Understood? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Okay, so now this is one of the best, part of IELTS, listening flowchart completion. Can you read, Richa? Yeah. Yes. Complete the flow chart below. Write no more than 3 words for each answer. Olive oil production. Olive oil picked dash. Olives picked. Olives picked dash. Fruit taken to the dash and crushed. Extra virgin oil produced from first pressing. Product bottled and dash. Transported to markets dash and dash. Now, I'm not going to I'm not going to play this again, students. So I want you people to just concentrate and let me see who is getting all the right answers. It's a very nice, flow chart. Let us see how you people do it. Listening Section 4. Extract 3. Questions 10 to 13. The production of olive oil is an expensive business. The best oil comes from olives that have been hand-picked, as machines tend to damage the fruit. So the best things, best olives come from hand-picked. So, what you need to do is just check out, hand-picked unhone bola hai. So what is going to be the answer? Olives picked by hand. So आपका आंसर होगा यहाँ पे by hand. 10th का आंसर होगा by hand. क्योंकि उन्होंने बोला olives, hand picked. तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे olives picked, hand picked लिखोगे तो it is not going to be grammatically correct. So it is going to be by hand. So answer of 10th is going to be by hand. First step is to pick the olives by hand. After this initial process, the fruit is transported to the mills where it is carefully crushed. क्या आएगा आंसर? 11th का आंसर, fruit is taken to the mills and crushed. So answer of 11th is going to be mills. Make sure that the spelling is right. It is going to be MILLS. Exactly. Otherwise, it is going to be the wrong answer. Okay. Incidentally, the very best oil, known as extra virgin oil, comes from the first crush. The paste, which results from the crushing process, is mixed until oil droplets form and the precious liquid gold is then bottled
in beautiful containers and labelled to show its origin. क्या आंसर आएगा? Yes, what is the answer of this going to be? It is going to be labeled. Labeled. No, Ayush, it is going to be labeled. Labeled का spelling सही होना जरूरी है. Product bottle and labeled. LABELLED. Understood? Okay. The oil finally finds its way into shops and supermarkets, both at home and abroad. Yes, what is going to be the answer? यहाँ पे grammatically सही होना जरूरी है. Transported to markets. Grammatically सही होना जरूरी है. Home and abroad. लेकिन सिर्फ home नहीं बोला है. उन्होंने at home बोला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे home लिखोगे तो गलत हो जाएगा. So let me see. Now I'll just play this once again. I mean, पीछे का play करता हूँ मैं. And labelled to show its origin. The oil finally finds its way into shops and supermarkets, both at home and abroad. Both at home and abroad. Is it getting clear? So you need to understand that it is both at home and abroad. अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं. जैसे कि चित्रण लिखा है at home and abroad. आपको आंसर ऐसे ही लिखना है. देखिए, all you need to do is make right answers like this. अगर आपने गलत लिख दिया, मतलब the answer of 13th is going to be like this. Is it getting clear? So this is how you are going to write. इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं चलेगा. काफी बच्चे listening करते हैं लेकिन they don't write the right way, in the right manner. So this is how your answers are going to be looking like. So ये जो है आपका आंसर. 10th का आंसर by hand, 11th is meals, 12th is labeled, and 13th is at home or abroad. Understood everybody? Yeah, Rutwa, have you understood now? Yes, 12th sir. at home and abroad. Okay. Labeled, यहाँ पे रुतवा उन्होंने ऐसा लिखा है at bottled and labeled ऐसा लिखा था. So that's the reason. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Last one, classification. This is also one of the most common types of listening question types that comes on IELTS. आप देख सकते हो क्या करना है आपको. 17, 18, 19, 20, 21 काफी केसेस में ऑप्शन ज्यादा होते हैं. यहाँ पे देखिए ऑप्शंस कम है. So what does it mean? What does it mean? You only need to write A, B, and C. Can you read, Rutwa, according to the speaker? Yes, sir. According to the speaker, which method works best for mastering these skills? Write the correct letter A to C next to the question 17 to 21. 17. ABC पढ़ो. Okay, ABC language laboratory, B self study, C small group work. 17 speaking, 18 listening, 19 pronunciation, 20 grammar, 21 reading. So you can see there are 5 questions and against which there are only 3 options. What does it mean? That the 3 options are going to be repeated. So there is a small possibility. In fact, there is a big possibility that A can come down as answer of 17. Again, A can come down as an answer of 20 and vice versa. So you need to be prepared for that. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कभी कभार ऐसा लोग बोलते हैं कि स्पीकिंग में क्या करोगे, तो मैं बोलूं, वो लोग ऐसा बोलते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी करेंगे हम, और लिसनिंग में सेम बोलेंगे. तो आपको समझना पड़ेगा कि सेम अगर बोला तो वापस ए ही आंसर आएगा. So these are small things when you need to understand or you need to take care of while you are doing classification questions over here. So let us do it. Listening, Section 4. Extract 4. Questions 17 to 21. Some people believe that when you're learning a language, the best way to improve your speaking is in the language laboratory. क्या आएगा आंसर? नहीं, आंसर ये नहीं आएगा. That answer is not good. काफी लोग ऐसा मानते हैं. नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है. काफी लोग ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेज लेबोरेटरी में स्पीकिंग अगर करवाना है तो लैंग्वेज लेबोरेटरी बेस्ट है. तो आपको ये समझना पड़ेगा. Many people believe that. अब देखते हैं आगे क्या होता है. But I firmly believe. इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है. बट तो बट का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज लेबोरेटरी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने यही करना है. लोग मानते हैं उसके बारे में नहीं लिखना है, ये स्पीकर क्या मानता है उसके बारे में लिखना है. That means language laboratory is not going to be your answer. Let us see what is the answer then. that it's better to work in small groups. Yes, what is the answer of this? It is better to work in small groups. So answer of this is going to be C. Understood? तो आप काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ये भी बोला वो भी बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि बेस्ट लैंग्वेज लेबोरेटरी है स्पीकिंग के लिए,
लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बेस्ट चीज स्पीकिंग के लिए वो है स्मॉल ग्रुप वर्क. सो आंसर ऑफ 17 इज गोइंग टू बी सी. ओके, आगे बढ़ते हैं. Because then you can also improve your listening at the same time. कितना सुंदर है, बिकॉज यू कैन देन इम्प्रूव द लिसनिंग एट द सेम टाइम. इसका मतलब लिसनिंग का आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द आंसर ऑफ लिसनिंग वन एज वेल? इट इज अगेन गोइंग टू बी सी. अंडरस्टूड? तो देखो गलती कहाँ पे हो जाती है. अगर आपने पहले वाले का लैंग्वेज लेबोरेटरी लिख दिया होता ए, तो 18 का भी शायद आप ए लिखते. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. सो 17 18 दोनों का आंसर इज गोइंग टू बी सी. बहुत अच्छा है. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वंस अगेन. इट्स वेरी नाइस. जैसे कि कंफ्यूज करने के लिए काफी अच्छा है. To 21. Some people believe that when you're learning a language, the best way to improve your speaking is in the language laboratory. But I firmly believe that it's better to work in small groups, because then you can also improve your listening at the same time. Understood everybody? Okay, Richa, understood? Yes, sir. Okay. After all, speaking and listening go together, don't they? Okay, क्या बोला उन्होंने? स्पीकिंग एंड लिसनिंग. गो बोला या गोस बोला? Go. स्पीकिंग एंड लिसनिंग गो बोला या गोस बोला? गो. क्यों गो बोला बताओ? Plural. Third क्या? person plural. थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसलिए उन्होंने गो बोला. लेकिन अगर अकेला स्पीकिंग होता तो Goes. गोस. वेरी गुड. ओके. And somehow it seems more natural to work in groups. The language lab is a good enough place to practice your pronunciation. The language lab is a good enough place to practice pronunciation. So what is the answer of 19? A. 19 is going to be A, क्योंकि language lab एक बहुत अच्छी जगह है to improve your pronunciation. Clear? Okay. And you can also improve your grammar by doing practice drills in the lab. देखो दोनों के आंसर आ गए. So you can also improve grammar by practicing in the lab. So 20 answer is also going to be A. ताजुब की बात है, 17, 18 are CC, 19 and 20 are AA. अब ये आपको समझना पड़ेगा कि एक तो आंसर होता ही है क्लासिफिकेशन में, एक तो होता ही है आंसर. 17 18 का आंसर आ गया है CC, 19 20 का आ गया है AA. तो जाहिर है 21 का आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी B. वही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं. Even if it's a bit boring. As far as reading is concerned, nothing beats working on your own and reading as much as possible whenever. नथिंग बिट्स रीडिंग ऑफ योर ओन. आपको खुद रीडिंग करना पड़ेगा अगर रीडिंग करना है, उसमें आपको अपनी महारत हासिल करना है तो. सो देयरफॉर द आंसर ऑफ 21 इज गोइंग टू बी B. you have the chance. Understood everybody? So this completes the entire type of questions of listening. ये इसका आंसर है. 17 और 18 का आंसर CC है, 19 और 20 के आंसर है AA, and 21 आंसर is B. Understood everybody? So this ends our session. It is almost 8:05 according to my watch. I hope you enjoyed the session, everybody. Yes, sir. Yeah, you want me to do something else or is it fine? Very good. Thanks for Shravani for giving the response. I want you people to tell me exactly. Do you want me to take something else? I'm ready to do that. Or you want me to, complete the session as you wish. Thank you so much, Dhruva, for saying that you enjoyed a lot. So tell me, students, you need to tell me क्या करूँ मैं. So do you want me to, complete? I mean, listening तो पूरा खत्म हो गया है. So, listening तो पूरा खत्म हो गया है. So tell me exactly. So we can do one thing, we can take a small session of, अगर आप यहाँ पे हो, मैं अगर यहाँ पे अगर एक बच्चा भी यहाँ पे जाता है तो मैं बंद कर दूंगा. So I want you people to stay. So let us do something else. एक छोटा सा काम करते हैं. Let me see अगर मेरे पास कुछ है तो. Just hold on for a second. Yeah, can you see a new share? Yeah, Yes, Rutwa, sir. can you see a new share? Yes, sir. Okay, so let us take a small essay topic, a very nice topic that I would like to take today. Richa, you are the one who's going. Yeah, if you are tired, I can ask somebody else to help me out. Is it No, fine? sir. Yes, I can read, sir. Okay, fine. So can you read? Everybody, let us go faster. एक बच्चा गया है तो मैं चाहूंगा बाकी के बच्चे रहे. मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा. So don't worry. काफी अच्छा टॉपिक है. Yeah, can you read? Yes, Richa? sir. Yeah.
Should criminals be made to do community work at free of cost, or should they be put in prison? What is your opinion? So this basically is an opinion based essay, students. ये एक opinion based essay है और यहाँ पे आपको अपना रवैया दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू राइट, यू नीड टू स्टेट क्या क्रिमिनल्स को कम्युनिटी वर्क में डाला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए या तो फिर उनको प्रिजन में डाला जाए. नाउ दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड कॉमन टाइप ऑफ टॉपिक दैट कम्स इन IELTS, जहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपको कि क्या आपको लगता है कि क्रिमिनल्स को कम्युनिटी वर्क में दिया जाए. शायद आपको पता होगा कि कम्युनिटी वर्क का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी वर्क इज यू आर नॉट पेड फॉर कम्युनिटी वर्क. अगर आपने कोई छोटा मोटा कोई गुनाह किया है तो आपको शायद फॉर एग्जाम्पल सोशल सर्विस दी जाती है. अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको पार्किंग में आई मीन वॉलंटियर काम करना है जहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते. तो ये क्वेश्चन यही कहता है कि क्या क्रिमिनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी वर्क के लिए जाना चाहिए या तो फिर उनको प्रिजन में डाला जाए. सो यू नीड टू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज योर ओपिनियन. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. Richa, there is a voice coming from behind. Can I ask somebody else to read? Yeah, just hold on. Richa, can I mute you? Yes, sir. Okay. So I want somebody else to read. Who is going to help me out? 5 minute लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे. I'll go faster. So who's going to help me out? Dhruva, can you do? Okay, yeah. Yes, sir. Should I start reading? ध्रुवा पीछे से, या आवाज, हाँ देख लो, चलिए रीड कीजिए. Brainstorming. Should all criminals be sent to prison, or should all criminals be sent to community service? Well, this depends on the type of crime, frequency of crime, and the age of the person committing it. Community service is the right option for minor crimes, while the serious crimes, prison is the only option. Okay, fine. So let me first of all explain you the topic. Topic ये कहता है कि क्या आपको जो गुनहगार होते हैं उनको कम्युनिटी सर्विस में डाला जाए या तो फिर उनको प्रिजन में डाला जाए. जब ये एग्री वाला टॉपिक आता है तो आप, मैंने पहले भी बताया था, आप इसको कंप्लीटली एग्री कर सकते हो, कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हो, मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री. इस केस पे मैं इसको ऐसे एग्री करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे लोगों को प्रिजन में भी नहीं डाला जाना चाहिए और सारे लोगों को कम्युनिटी सर्विस में भी नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपने क्या क्राइम किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मर्डर किया है, आपने कोई घिनौना काम किया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कमिटेड an act of terrorism, then you cannot ask this person to go for community work. In that case, the best way to send them is to send them to the prison. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने गुनाह क्या किया है, कौन से टाइम पे किया है और कितनी बार किया है. अगर आप बार बार गुनाह करते हो तो आप कम्युनिटी वर्क, और आपको मैं कम्युनिटी वर्क की सजा देता हूं तो आप सुधर नहीं रहे हो. इसका मतलब दिस इज नॉट इफेक्टिव एज फार एज यू आर कंसर्न. ऐसे केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे सेंड यू टू द प्रिजन. तो ये देखना पड़ेगा तय करने से पहले कि हमें क्या करना है, उसका गुनाह क्या है. तो ऐसे केस में हाउ यू आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन. ये आपका टॉपिक था, शुड क्रिमिनल्स बी मेड टू डू कम्युनिटी वर्क एट फ्री ऑफ कॉस्ट और शुड दे बी पुट इनटू प्रिजन. तो ऐसे केस में हम लोग ऐसा करेंगे. लेट मी, या हु इज गोइंग टू रीड, या कैन यू रीड? Yeah, can anyone else read? Dhruva is, I think, muted herself. So can anyone else read? Somebody from the boy side? Yes, I want somebody to read. जल्दी से chat box में लिखे. Write in the chat box. Yes, guys. Yeah, Ayush will read. चलिए. Yeah, Ayush पढ़िए. I have unmuted. Yeah, please read. Yeah. Should criminal be made to do community work at free of cost, or should they put in prison? It is common. धीरे धीरे पढ़ो. It is a common. ये आपका इंट्रोडक्शन है. हाँ जी. Okay. It is a common practice to put convicted people in prisons in many countries, while in many other countries community service is often recommended for many offenders. Although imprisonment is the right option for hardened criminals, I am of the opinion that not all crimes are equal and there is a need for unpaid community service as punishment for mild offenders and youngsters.
माइल्ड ऑफेंडर्स एंड यंगस्टर्स। अगर आप and इसको youngsters. या अगर आप सारे लोग इसको गौर से देखोगे, कितना सुंदर हमने पैराफ्रेजिंग किया है पहली लाइन पे। क्योंकि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को कम्युनिटी वर्क में दिया जाए, काफी लोग ऐसा मानते हैं कि हम उसको प्रिजन में डाला जाए। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, देखो कितने सुंदर तरीके से हमने इसको पैराफ्रेज किया। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस to put convicted people in prisons in many countries, while in many other countries community service is often recommended for many offenders. Offenders मतलब जो गुनाह करता है। अब देखो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दूसरा, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे। Although imprisonment is the right option for hardened criminals. Now I want somebody to explain me what do you mean by hardened criminals? Hardened criminals का मतलब क्या है? Can anyone tell me what do you mean by hardened criminals? हार्डन क्रिमिनल्स का मतलब होता है जो बहुत मतलब जो सुधर ही नहीं पाता, सीरियस मतलब जो बार बार क्राइम करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हार्डन क्रिमिनल्स, इजंट इट? सीरियस ऑफेंडर्स मतलब एक नहीं बार बार गुनाह करता है, उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट। लेकिन अगर देखो यहाँ पे लिखा है आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट नॉट ऑल क्राइम्स आर इक्वल। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि सारे क्राइम्स इक्वल नहीं होते और जरूरत है अनपेड कम्युनिटी सर्विस की उन लोगों के लिए जो पहली बार ऑफेंड कर रहे हैं और माइल्ड ऑफेंडर्स है, मतलब जो ऑफेंड गुनाह तो किया है लेकिन छोटा गुनाह किया है, और यंगस्टर्स अगर है उसने 21-22 साल में गुनाह कर लिया है। आपको शायद याद होगा शाहरुख खान का बच्चा था आर्यन खान, क्योंकि वो यंग था तो वकील ने भी उसने ये कोर्ट में कहा था क्योंकि सर ये एक यंग आदमी है, इसको हम अभी से जेल में डाल देंगे तो हो सकता है वो बड़ा क्रिमिनल बन जाए। तो कोर्ट ने भी ऐसा माना क्योंकि उसने पहली बार किया, यंग भी है, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि कम्युनिटी सर्विस को हम उसके लिए इख्तियार करें। इज इट गेटिंग क्लियर? यू कैन सी टू लाइन्स बीइंग रिटन, वेरी वंडरफुली रिटन। फर्स्ट लाइन इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट उसका पैराफ्रेजिंग है, और दूसरी लाइन जो है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे। वी आर गोइंग टू राइट अबाउट इम्प्रिजनमेंट एज द राइट ऑप्शन फॉर हार्डन क्रिमिनल्स। इन बॉडी पैराग्राफ 2 आई एम गोइंग टू राइट what is the right option for mild offenders, and then followed by conclusion। याद रहे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपका रवैया सेम ही होना चाहिए। ओके प्लीज पढ़िए आयुष। Body paragraph 1, to begin with, grave crimes should not be viewed in a lenient manner, for instance lenient manner नहीं, lenient manner है। हाँ। lenient manner, for instance brutal offenders who commit heinous crimes like premeditated murder and vandalism, abduction, hijacking, rapes, and so on, should be punished to set examples in society. Thus the background of a criminal and the motive of a crime should be considered. For instance, if someone is an habitual offender, then there is no place of community work, and long imprisonment can be the only option that can be thought of by the judicial system. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है इसमें। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा पहले इसको करें। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस क्राइम्स, गंभीर क्राइम। शुड नॉट बी व्यूड इन लीनियंट मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लीनियंट? कोई बताएगा लीनियंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लीनियंट? लीनियंट मतलब what is the meaning of lenient? I want you people to tell me. Lenient मतलब liberal। very good, many people are writing very lightly। इसको lightly नहीं लिया जाए कि अगर गंभीर किसी ने गुनाह किया है तो उसको lightly नहीं दिया जाए। फॉर इंस्टेंस ब्रूटल मतलब बहुत कुख्यात, ऑफेंडर्स मतलब गुनहगार, जो हीनियस मतलब जो मतलब जो घृणास्पद जिसको हम कहेंगे, जैसे कि टेररिज्म है, प्रीमेडिटेटेड मर्डर, प्रीमेडिटेटेड मतलब पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ क्राइम, वेंडलिज्म का मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को बार बार तोड़ते हैं फोड़ते हैं उसको वेंडलिज्म, एब्डक्शन मतलब किडनैपिंग, हाईजैकिंग, रेप्स एंड सो ऑन शुड बी पनिश्ड टू सेट एग्जांपल्स इन द सोसाइटी। ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व है उनको तो पनिशमेंट ही दी जानी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट किया जाए कि भाई इसके लिए तो गुनाह है। Thus the background of a criminal and the motive का मतलब मोटिव ऑफ अ क्राइम शुड बी कंसिडर्ड। और बाद में एग्जांपल दिया है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसके लिए कम्युनिटी जो सर्विस है उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए तो बेटर ऑप्शन है कि उसको तो जेल में ही डाला जाए। अब बॉडी पैराग्राफ में क्या आएगा? सो यू आर गोइंग टू राइट अबाउट, चलिए आयुष पढ़िए। However, the predominant reason for me to believe in voluntary community service like cleaning streets,
planting trees and working for charity instead of the prison sentence is that many offenders are not born criminals and circumstances often push them to commit a Transgression मतलब crime. transgression. Besides, when such premeditating convicts are convicts are expelled from society, they from society, they incline to offend in isolation, as there is none to accept them. Apart from these, juvenile delinquents should be rehabilitated by indulging them in community services. A recent study reveals that many youngsters who had been in prison for long times often end up becoming even bigger criminals. अगर कोई बच्चा 9 बैंड्स लेना चाहता है तो ये इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है IELTS का, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. अगर आप देखोगे प्रीडोमिनेंट मतलब मुख्य कारण, वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस का जैसे कि क्लीनिंग स्ट्रीट्स, प्लांटिंग ट्रीज एंड वर्किंग फॉर चैरिटी, उसका कारण ये है कि कोई भी बंदा जो है वो पहले से पैदा नहीं हुआ है क्रिमिनल्स. काफी कबार ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेस उनको धकेल देते हैं क्राइम करने के लिए, और अगर हम इसको एक्सपेल कर देंगे, सोसाइटी में हम उसको नहीं डालेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग वापस ऑफेंड करें, वापस उसका फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा करे कि वापस गुनहगार बन जाए. तो बेहतर ऑप्शन इनके लिए ये है कि उनको रिहेबिलिटेशन दिया जाए, छोटे क्राइम वाले जो करते हैं उनके लिए. और ऐसा स्टडी में देखा गया है कि अगर यंगस्टर्स को आप प्रिजन में डालेंगे तो वो लोग बड़े कुख्यात नोटोरियस क्रिमिनल्स के संगत में आएंगे, और छोटा क्रिमिनल जो होगा वो बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा. तो अगर किसी ने माइनर क्राइम किया है, यंगस्टर्स है, तो बेहतर ऑप्शन उनके लिए ये है कि उनके लिए कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स ही उनको दिया जाए. एंड फाइनली यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द कंक्लूजन. प्लीज रीड. कंक्लूजन टू रिकैपिटुलेट. लेकिन मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स इसके बदले इन कंक्लूजन लिखे, इन कंक्लूजन या तो फिर टू कंक्लूड. या ओके, टू कंक्लूड. Someone with no previous record of crime and sensible reason for minor misconduct should be treated differently than a serial killer. The objective of the law is to maintain peace in the society, not to punish people. Thus, unpaid community service is a great option to let some convicted lament for their crime and do some good for society. Exactly. तो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सब सोसाइटी का काम ये नहीं है कि सबको पनिश किया जाए. सोसाइटी का जुडिशियल सिस्टम का काम ये है कि सोसाइटी में पीस बना रहे. तो हमें सब लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट करना जरूरी नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई माइनर मिसकंडक्ट मतलब छोटा सा गुनाह जिसने किया है, उसको हम उसी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिसने सीरियल किलिंग किया है. तो ऐसे केस में बेहतर ऑप्शन इनके लिए ये रहेगा कि हम लोग कम्युनिटी सर्विस में उनको डाला जाए. सो बहुत अच्छा ऐसे है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दिस इज अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. वेरी गुड एग्जांपल्स, वेरी गुड वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड. इससे आपको ये अंदाजा रहेगा कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको बैंड्स अच्छे मिलेंगे. सो इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, लेट मी नो सो दैट आई कैन एंड माय लेक्चर. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स? और इसको रिफर कीजिए, मैं चाहूंगा इसको रिफर कीजिए. बहुत अच्छा सेंटर ये ऐसे है जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा. आपको ये फॉर एग्जांपल एनकरेजमेंट मिलेगा कि अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग we can write a wonderful essay. So thank you so much students. It is almost 8:20 according to my watch takriban. So I would be very happy for example in case if you have got any doubts. ऐसे का स्टेटमेंट चाहिए तो ये है आपका ऐसे का स्टेटमेंट. जस्ट अ मिनट, मैं ऐसे का स्टेटमेंट देना चाहूंगा. ये आपका ऐसे का स्टेटमेंट है. So you can take a screenshot of this as well so that you can refer this in the future. Clear? So thank you so much students for being over here. आप मेरे साथ 2-1.5 घंटे से हो. So thank you so much, and I hope that you enjoyed the session. Thank you so much students. Thank you very much students. Bye. Thank you everybody.